میں نے تمہیں ہزار بار منع کیا ہے مہرین، میرے اتنے قریب مت آیا کرو۔ اگر میرا خود پر سے قابو ختم ہو گیا تو تم میری دیوانگی اور جنون برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ حمزہ شاہ نے اسے آخری بار خبردار کرتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ حمزہ اور مہرین کے درمیان 10 سال کا ایک لمبا تفات تھا۔ مہرین ابھی صرف 16 سال کی تھی، حد سے زیادہ معصوم، بھولی بھالی اور نادان۔ دادا جان نے بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا، لیکن حمزہ کی یہ خواہش تھی کہ مہرین پہلے اپنی انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی مکمل کر لے، اس کے بعد ہی باقاعدہ رخصتی کا رسم ادا کی جائے۔ ایک شام مہرین ہاتھ میں کافی کی مگلیہ حمزہ کی کمرے میں آئی۔ اچانک پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی۔ مہرین بچپن سے ہی اندھیرے سے شدید خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال ہوا اور وہ سیدھی اچھل کر حمزہ کی گود میں جا بیٹھی۔ حمزہ کے لب جیسے اس کی گردن کے لمس ہوئے، اس کے صبر کا بندھن ایک ساتھ ٹوٹ گیا۔ وہ بالکل بے قابو ہو کے مہرین کے نازک وجود کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں محسوس کرنے لگا۔ کمرے میں باہر لان سے مدھم سی روشنی میں حمزہ بالکل اپنی صورت بت کھو چکا تھا۔ مہرین کی گرم اور تیز سانسیں حمزہ کے سینے کو گرما رہی تھی اور اس کی وجود کی نرمی حمزہ کے لیے خود پہ ضبط قائم کرنا ناممکن بنا رہی تھی، جبکہ مہرین تمام جذباتی کیفیتوں سے بالکل طور پر ناواقف تھی۔ حمزہ بھائی پلیز لائٹ آن کریں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اسے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ حمزہ نے ایک جنونی دیوانگی کے ساتھ اسے اپنے باہوں میں مزید کس لیا۔ مہرین کے لبوں سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی۔ حمزہ اس کے کان کے بالکل قریب جھکا اور اس کے تیز دھڑکنوں کو جیسے اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے کہا، بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ مہرین نے شدت حیرت سے اندھیرے میں حمزہ کے چہرے کی سمت دیکھا۔ اس نے حمزہ کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حمزہ کے مضبوط گرفت سے نکلنا اب اس کی بس کی بات نہیں رہی۔ ارے آپ یہ کیا کریں حمزہ بھائی؟ مہرین نے گھبرا کر پھر وہی غلطی دہرائی۔ میری جان۔ حمزہ نے اس کے نرم گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے اپنی نظریں اس کی گلابی لبوں پر جما دیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں ابھی جا کر دادی اماں سے اب شکایت کروں گی، میں انہیں سب بتا دوں گی آپ میرے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ مہرین کی بڑی بڑی روشن آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ معصومانہ انداز حمزہ کے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ حمزہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں مہرین، جاؤ اور دادی اماں کو یہ سب کچھ بتا دو تاکہ وہ ہماری رخصتی کی تاریخ کا اعلان جلد سے جلد کر دے اور یہ انتظار ختم ہو۔ یہ کہتے ہوئے حمزہ نے اسے دوبارہ اپنی گود میں کھینچ لیا۔ اس نے مہرین کے کندھے سے ریشمی بال ہٹاتے اور اپنے بہلانہ محبت کا گہرا نشان وہاں چھوڑ دیا۔ مہرین نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے تڑپ کر اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی حمزہ نے اس کی سراہی دار گردن پر اپنی چاہت کی مہر مثبت کر دی۔ مہرین کے لبوں سے ایک ہلکی سی آہ نکلی اور جب حمزہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو اسے روحانسی اور شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، باقاعدہ شرعی نکاح ہوا ہے ہمارا، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی اچھی طرح سمجھائی تھی۔ حمزہ نے دھیرے میں لہجے میں یاد دلایا۔ مہرین نے فوراً اپنی نظر جھکا لیا۔ اسے اب سب معلوم تھا، پر وہ جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی، کیونکہ تائی امی نے اسے سختی سے تائید کی تھی کہ حمزہ کے سامنے کبھی اس بات کا اقرار مت کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حمزہ سے اس موضوع سے پر بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی سچائی جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاندان کے باقی کزن کی طرح اسے بھی بھائی ہی کہتی تھی، لیکن آج حمزہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ لفظ سن سن کے اس کے کان پک گئے تھے۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا وہ اس لڑکی کو اچھے طریقے سے سمجھائے گا کہ ان کے پاکیزہ رشتے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مہرین کے خیال میں گم تھی کہ حمزہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ایک دم حیرت کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ اس کی گود سے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ حمزہ نے اسے اور بھی اپنے قریب کر لیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے نازک گردن پر اپنی چاہت کا سن ڈھانے لگا۔ مہرین کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی، جس سے حمزہ کا جنون کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پلیز بس کریں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے روتے ہوئے دبی آواز میں کہا، تمہاری سزا ہے۔ حمزہ نے سرگوشی کی، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ مہرین نے انتہائی معصومی سے سوال کیا، اتنے عرصے سے تمہیں ہمارے رشتے کی سچائی کا علم تھا، پھر بھی تم جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہی تھی، میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی، تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر ترس نہیں آیا؟ نہ ہی تم نے میرے دل کی کیفیت کی قدر کی۔ اب تمہیں ان تمام گناہوں کا متبادل دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر حمزہ نے اسے نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں، مجھے تائی امی نے منع کیا تھا۔ وہ بالکل دھیمی آواز میں کہنی، اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ میں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارا میرے پاس آنا مجھے برا لگتا ہے؟ وہ اپنے گہری اور سحر انگیز آنکھوں سے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ خود ہی تو فرما رہے تھے کہ میں آپ کا صبر کا امتحان لیتی ہوں، کیونکہ تمہارا یہ قرب مجھے بہکا دیتا ہے اور جب میں جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہوں تو تم مجھے خود سے دور کر دیتی ہو۔ میں صرف اس لیے تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے تمہیں میاں بیوی کے رشتے کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ مجھے سب معلوم ہے، جب ہماری رخصتی ہو جائے گی تو رات کے وقت آپ مجھے پیار کریں گے۔ کہتے کہتے وہ اچانک رک گئے، اس کے گورے چہرے پر شرم کی لالی چھا گئی، اس کے گال انگاری کی طرح دہکنے لگے۔ حمزہ اس کی یہ اچانک خاموشی سے تھوڑا الجھ گیا۔ بولو، اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ شادی اور رخصتی کے بارے میں تمہیں اور کیا کیا معلوم ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے صاحب، اپنا چہرہ حمزہ کے چوڑے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ حمزہ پہلی بار چھوٹی سی لڑکی کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اس سے یہ سوال نہ کرتا تو شاید وہ کبھی بھی اپنا دل کا حال نہ بتاتی اور اگلے کئی سالوں تک حمزہ کے جذبات کے ساتھ ایسی معصومانہ کھیل کھیلتی رہتی۔
हमजा ने इसके दिल की धड़कन को अपने हाथों से हल्के से महसूस किया तो वो तड़प कर तेज़ी से नीचे की तरफ खसक गई। "प्लीज़ आप ये सब मत करें, मुझे बहुत अजीब-सी बेचैनी हो रही है," महरीन ने कहा। "मुझे भी तो ऐसे ही बेचैनी का सामना करना पड़ता है जब तुम मेरे करीब आकर अचानक दूर चली जाती हो। मुझे लगता है जैसे हमारे दरमियान सर्दियों का फ़ासला है। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने मुझे कितना तड़पाया।" हमजा के सुर में आँखों में देखते हुए कहकर, "तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तंग ना करूँ और तुम्हें ये बेचैनी ना हो तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें और क्या पता है?" मैंने हिचकिचाते हुए कहा, "मेरी सहेली ने मुझे बस इतना ही बताया कि रुखसती के बाद आप मुझसे बहुत मोहब्बत करेंगे, मुझे प्यार करेंगे और फिर 1 महीने बाद अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत दे देंगे और मेरा छोटा-सा बच्चा हो जाएगा।" ये कहकर वो खामोश हो गई और अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए हमज़ा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगी। हमज़ा के लिए अब इसकी हद से बढ़ी हुई मासूमियत को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसने मेहरीन के चेहरे पे अपनी उँगलियाँ फेरते हुए मदहोश कुन लहजे में पूछा, "तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? अपनी मासूमियत से मुझे पागल करने की कोई नई तरकीब आज़मा रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ़ प्यार करने से बच्चा हो जाता है?" मेहरीन ने मासूमियत से साबत में सर हिलाया। ड्रामा और फ़िल्मों में भी तो ऐसा ही दिखाते हैं ना, हीरो-हीरोइन को प्यार करता है, फिर वो एक-दूसरे का हाथ थाम कर सो जाते हैं और कुछ दिनों बाद हीरोइन के यहाँ बच्चे की आमद की खबर आ जाती है। इतने बड़े जोश से जवाब दिया। वो हमज़ा की गुर्बत से बुरी तरह बेचैन थी और किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। आज इसकी अपनी हसासियत भी बहुत मुख़्तलिफ़ थी, जैसे इसने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमज़ा इसकी बातें सुनकर काफ़ी मुतासिर हुआ। इसने छोटी-सी नाक को हल्के से खींचते हुए कहा, "आज तुम्हारी ये गलतफ़हमी मैं दूर कर देता हूँ। क्या मतलब है आपका?" बहरीन ने जैसे ही हमज़ा की नज़रें अपने लबों पर मरकूज़ देखी, इसने फ़ौरन अपने दोनों हाथों से अपनी लब छुपा ली और ज़ोर-ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। "प्लीज़, प्लीज़ मुझे प्यार मत कीजिएगा। अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं सब घरवालों को क्या जवाब दूँगी? सबको पता चल जाएगा कि हमने अंधेरे में क्या-क्या किया था।" हमदा ने इसके दोनों नाज़ुक हाथ पकड़ के पीछे की तरफ धकेल लिए। इस लम्हे अचानक लाइट आ गया। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। वो महरीन के चेहरे के एक-एक तासुर को बिल्कुल साफ देख सकता था। जहाँ खौफ और शर्म के जज़्बात एक साथ झलक रहे थे। "तुम 2 मिनट यहीं रुको, यहाँ से 1 इंच भी मत हिलना वरना मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा।" हमज़ा ने तंबिया किया और दरवाज़े की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, मेहरीन ने मौका गनीमत जाना अटैच वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन हमज़ा इससे भी ज़्यादा चुस्त निकला। इसने वॉशरूम के दरवाज़े के बीच अपना पाँव अड़ाया और फ़ौरन अंदर दाखिल हो गया। "प्लीज़ मेरे पास मत आइए," मैंने चिल्लाई। "आज मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊँगा और ये भी बताऊँगा तुम्हें फिर मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा और तुम पर मेरा वो रहा कि।" हमज़ा ने इसकी आँखों में आँखें डाल के थोड़े रुबाबदार अंदाज़ में कहा, "जो बीवियाँ अपने शौहरों को अपने करीब आने से रोकती हैं ना, अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हो जाता है। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ़ मुझे तंग करने के लिए है।" मेहरीन ने शक भरी नज़रों से कहा। हमज़ा अपने इस मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से रोका और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों अब शावर के नीचे खड़े थे। हमज़ा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। "जा आप इस तरह डरावने तरीके से मत मुस्कुराएँ, मुझे खौफ आ रहा है।" इसने घबरा कर कहा, "ठीक है मेरी जान।" हमज़ा ने धीमे से कहा और शावर ऑन कर दिया। दोनों पानी की बूंदों में भीगने लगे। महरीन की आंखें बार-बार बंद हो रही थीं और पानी की वजह से इसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। हमज़ा ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया, उसके लब्बों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। थोड़ी देर बाद जब हमज़ा इससे अलग हुआ, तो महरीन अपने सीने पे हाथ रखकर पानी के नीचे से हटी और तेज़ से सांसें लेने लगी। इसकी हालत देखने के लायक थी। हमज़ा इसे इस हाल में देखकर बहुत महफ़ूज़ हो रहा था। "ये आपने क्या कर दिया हमज़ा जी?" इसने धीमे और अपनेपन वाले लहजे में इसका नाम लिया था। हमज़ा को लगा जैसे किसी ने इसके दिल को मुट्ठी में ही कस लिया हो। इसे अपना नाम पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं हुआ था। "अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं हमज़ा की जान।" ये कहकर उसने फिर से इसे अपने करीब खींच लिया। हमज़ा ने अपने हाथ से इसके भीगे बालों में फँसाया, उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। इसका कद-काठ का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। महरीन मुश्किल से इसके कंधों तक आती थी। हमज़ा ने फिर से इसके लबों को चूमना शुरू कर दिया। इस दौरान हमज़ा के हाथ इसके वजूद पर हरकत कर रहे थे। कभी वो उसके दिल की तेज़ धड़कनों को महसूस करता, तो कभी इसकी पतली कमर को कस के पकड़ लेता। महरीन पूरी तरह बेबस हो रही थी। इसकी हालत गैर होने लगी थी। जब हमज़ा दूसरी बार इससे अलग हुआ, तो महरीन ने हमज़ा की कमीज़ को मज़बूती से थाम रखा था। वो उसके गले लगी हुई थी। "मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है," इसने मासूमियत से एतराफ़ किया। "मुझे बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगा?" हमज़ा ने सवाल किया। वो खामोशी से इसकी आँखों में देखने लगी और शर्मा कर अपनी गर्दन झुका दी। लेकिन हमज़ा जी इसकी बड़ी-बड़ी आँखें अचानक दोबारा आँसुओं से भर गईं। "क्या हुआ हमज़ा?" परेशान होकर अपने अंगूठे से इसके आँसू पोंछने लगा। "एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, मैं सब घरवालों को क्या जवाब दूँगी?" हमज़ा फ़ौरन समझ गया कि वो किस मसले की बात कर रही है। इसने भी मासूम बनकर सर झुकाया, बोला, "हाँ, मसला तो वाक़ई बहुत बड़ा है, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास।" "हल क्या है? प्लीज़ मुझे बताएँ ना।" बहन ने बड़ी उम्मीद से पूछा। अगर तुम 1 महीने के तक रोज़ रात को मेरे कमरे में आओगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, तो तुम कभी बीमार नहीं होगी और ना ही किसी को पता चलेगा मैंने तुम्हें प्यार किया। अब बताओ क्या तुम्हें ये मंज़ूर है? अगले 30 दिनों तक तुम्हें रोज़ मेरे पास आना होगा।" ये सुन के महरीन और भी परेशान हो गई। "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप बहुत बुरे हैं।
क्या कहा है तो तुमने? दोबारा कहना। हमज़ा ने इसे मसनवी गुस्से से घूरा। मेहरीन फ़ौरन अपनी बात से पलट गई। मैं तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं बस मज़ाक कर रही थी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं रोज़ आपके पास आ जाया करूँगी, लेकिन आप वादा करें आप मुझे तंग नहीं करेंगी। मेहरीन ने एक-एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हुए कहा। हमज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मेरी जान, जब तक हमारी बाकायदा रुखसती नहीं हो जाती तब तक मैं खुद पर काबू रखूँगा, लेकिन इस रात तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। समझी? इसने हल्के से इसका गाल थपथपाया। जी समझ गई। मेहरीन ने मासूमियत से सर हिलाया। चलो अब आओ और मेरे पास लेटो। हमज़ा ने अपना अगला हुक्म सुनाया। मेहरीन फिर से परेशान है कि मुझे अपने कमरे में जाना है। क्या तुम इस हालत में बाहर जाओगी? देखो तुम्हारे कपड़े पूरी तरह गिले हैं। हमज़ा ने इशारा किया। तो फिर मैं क्या करूँ? थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, जब हवेली के सब लोग सो जाएँगे मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आऊँगा, ठीक है? हमज़ा ने इसके गालों को चूमते हुए कहा। इसने एक बार फिर इसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया और इसे प्यार करने लगा। महरीन फिर से इन जज़्बात में खोने लगी। इसने अपने हाथ हमज़ा की गर्दन में डाल दिया और तकरीबन इसके सहारे ही खड़ी थी। तभी अचानक कमरे के दरवाज़े पे दस्तक हुई। हमज़ा का मूड पूरी तरह ख़राब हो गया। इस वक़्त कौन आ गया? इसने गुस्से से दरवाज़े की तरफ देखा। महरीन डर के मारे हमज़ा के पीछे छुप गई। उसकी कमीज़ कस के पकड़ ली। इसे मालूम था कि सिर्फ़ हमज़ा ही इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है। चुप हो जाओ, बिल्कुल आवाज़ मत निकालना, मैं देखता हूँ कौन है। हमज़ा ने इसे तसल्ली दी। मैं ड्रेसिंग रूम में छुप जाती हूँ। मेरिन घबरा कर वहाँ से भागी। हमज़ा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने इसका कज़न परवेज़ खड़ा था, जो जमाए लेते हुए अंदाज़ में आने लगा। ओह हेलो, कहाँ जा रहे हो? बाहर रहो। हमज़ा ने इसे रोका। बाहर मेरे कमरे का हीटर ख़राब हो गया। आज तेरे साथ सो जाऊँ? परवेज़ ने पूछा। नहीं, हमज़ा ने दो टोक जवाब दिया। परवेज़ हैरान रह गया, क्योंकि हमज़ा ने उसे पहले कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। हमज़ा के चेहरे के बदलते रंग देख के परवेज़ एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर कोई और बात है तो शेयर कर सकता है, मैं पूरी मदद करूँगा। हमज़ा ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा उसके मुँह पे बंद कर दिया। परवेज़ अपना सर खुजाता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। हमज़ा ने जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया, महरीन बिजली की रफ़्तार से बाहर निकली और पीछे देखे बगैर ही भागी। हमज़ा इस वक़्त कमरे का मेन दरवाज़ा लॉक कर रहा था। महरीन का सर सीधा लकड़ी के दरवाज़े से जा टकराया। वो वहीं ज़मीन पे बैठ गई और छोटे बच्चों की तरह फुट-फुट के रोने लगी। हमज़ा ने अपने माथा-पिटले से इस लड़की की फ़िक्र भी हो रही थी और इससे नादानियों पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो? मैरी ने रोते हुए नफ़ी में सराहा। मेरा सर फट गया और ये सब आपकी वज़ह से हुआ। अगर आप मुझे यहाँ ना रोकते और मुझे सारा प्यार ना करते तो मुझे ऐसे छुपना ना पड़ता। मेरी ने सारा इल्ज़ाम हमज़ा पे धर दिया। ओह हेलो मैडम, क्या मतलब है आपका? मैंने आपके साथ कोई गलत तरीके से अमल नहीं किया, बिल्कुल जायज़ तरीके से बस ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि तुम मेरी मनकूहा हो, मेरी बीवी हो और हमारा रिश्ता कितना मज़बूत है। मैं जहाँ चाहूँ तुमसे मोहब्बत का इज़हार कर सकता हूँ। ये कहकर हमज़ा फिर से इसके करीब आया। बहरीन ने इसके इशारा पर पूरी तरह काबू उठे। प्लीज़ मुझे जाने दे, इसने मिन्नत की। हमज़ा खामोशी से उसके चेहरे के बदलते तासुरात को देख रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अगले 30 दिनों तक लगातार मेरे पास आना होगा। अगर नहीं आए होंगी तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, जब तुमने इंटरनेट पर जाकर इसके बारे में कुछ भी सर्च करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा शौहर होने के नाते तुम्हें मना कर रहा हूँ। तुम्हारी नन्ही सी जान है, तुम डर जाओगी। वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्यार से एक-एक करके खुद समझाऊँगा, समझी? जी। इसी गले से एक बहुत धीमी आवाज़ निकली और वो तेज़ी से कमरे से बाहर भाग गई। इसके जाने के बाद हमज़ा अब दीवार का सहारा लेकर खुलकर हँसा। मेरी प्यारी भोली लड़की। इसने अपना सर झटका सीने की अब काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। वो बालकनी में खड़ा हो गया और सिगरेट सुलगाई। ये लड़की इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ थी। बचपन से ही वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। ऐसे आता इसने महरीन के 18 साल के होने का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन अब सब्र का बंधन टूटने लगा था। वो 16 साल की हो चुकी थी और इस पर जवानी पूरी तरह जोबन थी। इसका खूबसूरत सरापा और दिलकश नैन-नक्श किसी को भी मदहोश कर सकता था। वो जब भी हमज़ा के पास आती, इसका खून जोश मारने लगता। इसका बस नहीं चलता इसे अपनी बाहों में भर ले और दुनिया को भूल जाए। वो सिर्फ़ इसके 18 साल के होने का इंतज़ार कर रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर थी। मेरीन अनजाने में इसके इतने करीब आ जाती थी कि हमज़ा का खुद पे कंट्रोल नहीं रहता था। आज भी वही हुआ। जब वो कमरे में आई और लाइट चली गई, महरीन के खौफ से चिल्लाना और हमज़ा के गले लग जाना। यही वो लम्हा था जब हमज़ा का ज़ब्त टूट गया। वो इसकी हलाल बीवी थी, इसके निकाह में थी, इसके लिए जायज़ थी। बस यही सोच इसके लिए काफ़ी थी। इसने वह सब भुलाकर इसे जी भर के प्यार किया और उसे एहसास करा दिया कि वो पूरी की पूरी हमज़ा शाह की है। दूसरी तरफ महरीन जब अपने कमरे में पहुंची तो उसकी सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक वो आईने के सामने खड़ी अपने भीगे वजूद को देखती रही। इसे खुद से शर्म महसूस होने लगी थी। जहाँ-जहाँ हमज़ा ने इसे छुआ था, वो इन जगहों को अपने हाथ से सहला रही थी। दिल की हालत भी अजीब थी और इसका वजूद फिर से इस शक की तलब करने लगा था, जिसने अभी इसके पूरे वजूद पर अपने नाम की छाप छोड़ दी थी। हमज़ा शाह इसके कलम धीरे से बड़बड़ाया। आपको मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। वो बेचैन होकर बेड पे बैठ गई, लेकिन अचानक इसे याद आया कि रात के 11 बजे अम्मी इसके कमरे में चेक करने आती हैं कि वो सोई है या नहीं। इसे हमज़ा के कमरे में ही 11 बज गए थे। इसने जल्दी से कपड़े तब्दील किए, लाइट बंद की और चादर ओढ़ के लेट गई। ठीक उसी वक़्त दरवाज़ा खुला और नफ़ीसा बेगम अंदर आई। उन्होंने रोज़मर्रा के मुताबिक महरीन का नाम पकड़ा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो चुपचाप बाहर चली गई। हवेली के कायदे-कानून बहुत सख्त थे, ख़ुसूसन लड़कियों के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती थी। ये पहली बार था जब महरीन जाग रही थी पर सोने का नाटक कर रही थी। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि और साँसें फूल रही थी।
सोने की कोशिश में भी हमज़ा का चेहरा उसकी आँखों से के सामने घूम रहा था। बस दिल में एक ही ख़ौफ बैठा था, अगर कुछ गलत हो गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। वो दुआएँ माँग रही थी, ऐसा कुछ भी ना हो। साथ ही वो सोच कर भी हैरान थी कि हमज़ा के पास ऐसी कौन-सी चीज़ होगी जिससे सब ठीक रहेगा। इसी कशमकश में इसकी आँख कब लगी इसे पता ही नहीं चला। अगले सुबह जब धूप इसके चेहरे पे पड़ी तो इसकी आँख खुल गई। अचानक से याद आया कि आज इसका बहुत अहम टेस्ट था जो मिस हो गया है, पर इसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया क्योंकि इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। असल में वो रोज़ रात 8 बजे पढ़ाई करती थी, लेकिन कल रात वो हमज़ा के कमरे में थी। एक और अनोखी बात ये थी कि हमज़ा ही इसका ट्यूटर था, जो रोज़ शाम 5 बजे इसे पढ़ाने आता था। जैसे ही वो नाश्ते की मेज़ पर पहुँची, हमज़ा की भारी और अबदार आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो सबको सलाम करता हुआ महरीन के ठीक सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। महरीन ने शर्म के मारे फ़ौरन नज़रें झुका ली। इसकी पलकें काँप रही थी। हमज़ा ने जब इसकी हालत देखी तो वो मन ही मन मुस्कुराया। वो यही तो चाहता था कि महरीन इसे देख के वैसे ही परेशान हो जाए जैसे वो खुद होता है। महरीन ज़रा वो जैम पकड़ाना हमज़ा ने कहा। हमज़ा की बात सुनते महरीन के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। घबराहट में उसने जैम के बजाय जूस का गिलास हमज़ा की तरफ बढ़ा दिया। मेज़ पे बैठे सब लोग हैरानी से इसे देखने लगे। क्या हुआ तुम्हें रात को सोई नहीं क्या? से तुम्हारा मोबाइल तो मेरे पास ही था। नफीसा बेगम ने फ़ौरन से टोका। इन्हें लगा कि शायद नींद पूरी ना होने की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। महरीन ने हड़बड़ा के कहा, अम्मी मैं कसम खाती हूँ मैं कल जल्दी सो गई थी। खुद को बचाने के चक्कर में इसने झूठी कसम भी खा ली, पर दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि कौन सा इसने मोबाइल चलाया था। वो तो एक अलग ही माजरा था जिसकी वजह से इसकी नींद उड़ी थी, और इस माजरे के बारे में वो फिलहाल किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। हमजा ने खुद आगे बढ़ के चैन उठा लिया। अब मेज़ के नीचे इसका पाँव महरीन के पैरों को छू रहा था। महरीन बार-बार अपनी पोज़ीशन बदल रही थी क्योंकि इसके दिल की हालत बिगड़ने लगी। एक अजीब-सा सुरूर उसके ज़हन पर छाने लगा और इस शख़्स की तरफ कोशिश महसूस कर रही थी जो कल रात इसकी चाहत में पागल हो रहा था। अब अम्मी मेरा पेट भर गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उसने अचानक उठते हुए कहा। तो जाओ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? नफ़ीसा बेगम ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तभी हमदा की आवाज़ आई, आज शाम 6 बजे मेरे कमरे में आ जाना, ऑफ़िस से थोड़ा लेट हो जाऊँगा। कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें इसी लॉन में या स्टडी रूम में ही पढ़ाया करो। दादी माँ ने फ़ौरन रोकते हुए अपनी राय दी। दादी माँ, वो स्टडी रूम ही है। ठीक है, मैं वहीं पढ़ा लूँगा, कोई मसला नहीं। हमदा ने छोटे कंधे चढ़ाते हुए बड़े पुरसुकून अंदाज़ में कहा। इसे ना तो गुस्सा आता था और ना ही वो कभी परेशान होता था। मैंने दिल ही दिल में इसकी अदाकारी देखकर हैरान थी। इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, पता नहीं क्यों कल रात ही मैं इनके कमरे में गई। अगर मुझे पता होता कि मेरे करीब आने से इन्हें करंट लगेगा तो मैं कभी इनके पास नहीं जाती। पर मैं भी क्या करती, बहुत डर गई थी। वो खुद से ही सवाल-जवाब कर रही थी, सोचते-सोचते इसका सर फटने लगा। वो ऐसा क्या करे कि हमज़ा का सामना ना करना पड़े, जवाब नामुमकिन लग रहा था। ठीक शाम 6 बजे हमज़ा घर आया। इसकी नज़र महरीन को ही ढूँढ रही थी, जिस पर अभी कल ही इसकी मोहब्बत का रंग चढ़ा था। इसने देखा कि महरीन किचन में अपनी अम्मी के पास खड़ी बर्गर बना रही है। पढ़ाई में इसे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, पर कुकिंग इसे बहुत पसंद थी। हर वीकेंड पे वो नई-नई डिश ट्राई करती थी और सबसे पहले हमज़ा को ही टेस्ट करवाती थी। वो हमज़ा का अपना सब कुछ समझती थी, इसीलिए बड़े जोश में इसके कमरे में जाकर कहती थी, देखिए ना मैंने आज आपके लिए क्या बनाया। उसके पास ही बैठ जाती, कभी इसका हाथ हमज़ा से टच हो जाता तो हमज़ा फिर परेशान होता, और आज वही बेचैनी महरीन को महसूस हो रही थी। ये सब छोड़ो और स्टडी रूम में आओ, तो हमें एक अहम टॉपिक कवर करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। हमज़ा ने हुक्म सुनाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलो बच्चे, तुम ये छोड़ो, तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, इस पर तवज्जो दो, ये सब मैं कर लूँगी। नफ़ीसा बेगम ने इसे सामान लिया और किचन से बाहर निकाल दिया। महरीन के पास बोलने के अल्फाज नहीं बचे थे। किताबें उठाकर सर झुकाती वो स्टडी रूम में दाखिल हुई। वहाँ हमज़ा पहले ही कुर्सी का सहारा लेके बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। मिरेन के चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। इसे परेशान देखकर हमज़ा ने तसल्ली देते हुए कहा, "फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अभी तुम्हारी पढ़ाई का वक़्त है, तो सारा फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई पे रखो।" हमज़ा ने संजीदगी से बात आगे बढ़ाई, "आज फिर तुमने क्लास मिस कर दी। प्रिंसिपल साहिबा का फ़ोन आया था, वो काफ़ी नाराज़ हो रही थी।" मैंने ना फ़ौरन पलट के कहा, "इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सब आपकी वज़ह से हुआ है। अगर कल रात आपने मुझे प्यार ना किया होता तो मैं इतनी परेशान ना होती। और सुन लीजिए, अगर मैं पढ़ाई में फ़ेल भी होगी तो सारा इल्ज़ाम आप पर आएगा। अभी तो मैं खुद बची हूँ, चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी।" ये कहते-कहते वो रो पड़ी। हम लगा दिल के अपना सर पीट लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की अब तक इस बातों से इतना सीरियस लेके बैठी है। वो इसके पास झुकाव फ़िक्र जाता था। वो पूछा, "क्या तुमने इंटरनेट पे कुछ सर्च तो नहीं किया?" "नहीं, आपने ही तो मना किया था, वो सब बातें अच्छी नहीं होती। अगर मेरा दिमाग इन बातों में चल जाता तो पढ़ाई तो दिमाग से निकल ही जाती।" इसे सकते हुए अपनी नाक पोंछ के जवाब देती है कि तुम रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें समझा दूँगा। फ़िलहाल पढ़ाई पे फ़ोकस करो। मैंने ना अपनी ज़िद पड़ गया। आप बहुत मतलबी हैं, मुझे भी पता है, वरना मुझे पढ़ना ही नहीं है। हमज़ा ने इसे घूर लहज़े में घूरा और याद दिलाया, तुम जानती हो कि पढ़ाई को लेकर मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। पढ़ाई में तो मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी नई बात मन ही मन में कही। जल्दी किताबें खोलो वरना फिर से सज़ा दूँगा। हमज़ा ने हल्की सी धमकी दी। पुरानी सज़ा याद आती है। मेरिन फ़ौरन किताबें खोलकर बैठी। इसके सामने साइंस की बुक थी जो उसे कुछ समझ नहीं आती थी। हालाँकि हमज़ा ने पिछले हफ़्ते ही इसे सब समझाया था और टेस्ट भी लिया था। ऊपर वो जितनी जल्दी समझती थी, इतनी जल्दी भूल भी जाती थी। वो बुक को टकटकती
बाँधे देखी जा रही थी बड़बड़ाती, "मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आज का दिन बहुत मुश्किल गुज़रेगा। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया।" हमज़ा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मैंने कुछ कहा? बिल्कुल नहीं, वो अनजान बताए हुए फिर से वो को घूरने लगी। हमज़ा ने उठते हुए कहा, "तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी करो और मुझे टेस्ट दो।" इतना कहकर वो बुक रैक के पास जा खड़ा हो गया। काफ़ी वक़्त बीत गया था, मेहरीन ने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था। हमज़ा वैसे तो अपने प्लेट पलट रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी मनखुआ की तरफ था। वो अपना मोबाइल निकाल कर बड़े जोर से किसी के साथ मैसेज टाइप करने में मसरूफ़ थी। चैटिंग बाद में करना, फ़िलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। उसने टोकते हुए कहा, "जी, वही कर रही हूँ। अपने एक फ्रेंड से नोट्स माँग रही हूँ।" उसने जवाब दिया, "जो नोट्स मैंने तुम्हें दिए थे, वो कहाँ हैं?" "वही तो मैं अपने दोस्त को दिए थे। बस इसी से वापस ले रही हूँ।" हालाँकि सच तो कुछ और ही था। इसने जो मैसेज टाइप किया था, इसे सोच कर वो खुद भी शर्मिंदा हो रही थी। इसने लिखा था, "मुझे बताओ कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इस टेस्ट से जान छूट जाए, वरना आज मेरी खैर नहीं। सामने से इसकी 200 जवाब है। अपने शौहर को बहकाओ, अपने प्यार की राह पे ले जाओ। वो तुम्हारा टेस्ट नहीं लेंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी।" इसकी सहेली ने इसे मुफ्त का मशवरा दिया था। एक पल मैं इन्हें कैसे बहकाऊँ? अरे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इनके करीब जाओ, अपनी मखमली नज़रों से इनको देखो और देखना। मैसेज पढ़ते इसने झट से मोबाइल की स्क्रीन बंद किया, उल्टा साइड में रख दिया। उसकी सांसें तेज़ चलने लगी। इसी हालत देखकर हमज़ा को शक हुआ। उसने पूछा, "किसका मैसेज था? दिखाओ मुझे।" "किसी का नहीं, मेरी फ्रेंड का मैसेज था और मैं अपनी पर्सनल चैट किसी को नहीं दिखाती। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लड़कियों की अपनी हज़ार बातें होती हैं।" ठीक है, ज़्यादा लाइसें देने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से नोट्स निकालो।" उसने मासूमियत से कहा, "क्या मुझको पर ज़रा-सा भी प्यार नहीं है हमज़ा जी? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊँगा, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। मैं आपको कोई झांसा नहीं दे रही, बस एक सवाल कर रही हूँ।" ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठी, एक ख़ास अंदाज़ में अपनी किताब साइड में रखी और सीधा हमज़ा की गोद में जाकर बैठ गई। हमज़ा इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बस खाली नज़रों से इस हसीना को देख रहा था, जिसकी धड़कनें अब हमज़ा को महसूस हो रही थी। इसके वजूद की नरमी महसूस करते ही हमज़ा के अंदर जैसे आग लग गई। एक ऐसी तपिश जिसने इसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। "ये सब क्या है?" हमज़ा की आवाज़ में एक थरथराहट थी, लेकिन महरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे से उसके चेहरे की ओर झुकी, हमज़ा के चेहरे को अपने हाथों के घेरे में ले लिया, उसके लबों को चूमने लगी। वो बड़ी नज़ाकत से इसे प्यार कर रही थी। हमज़ा धीरे-धीरे अपने होश खोने लगा। उसके दिमाग से पढ़ाई, टेस्ट की सारी बातें हवा हो गई। इसे बस याद था तो इतना कि इसके सामने पैर लुटाती औरत इसकी बीवी है। अगले ही पल हमज़ा ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और सोफ़े की तरफ पीछे धकेल लिया। वो पूरी तरह इस पर हावी हो गया था। इसकी गर्दन पे प्यार के वो निशान छोड़ने लगा, जिन्हें इसने बड़ी मुश्किल से फाउंडेशन की मदद से छुपाया था। आज पूरा दिन घरवालों के सामने वो बड़ी-सी चादर ओढ़ के घूमती रही, ताकि इसकी नज़रें इन निशानात पर ना पड़े। अगर अम्मी देख लेती तो शामत आ जाती, पर वो अब सब हटा चुका था और नए निशान की जगह बन रही थी। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो हमज़ा के अंदर सोए हुए जुनून को जगा देगी। "हमज़ा जी, मुझे पढ़ाई करनी से धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे तुम्हें प्यार करना है।" हमज़ा ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखा। वो दोबारा करवाना प्लीज़?" इसने नज़रें चुराते हुए पूछा, "क्या दोबारा करूँ?" "वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिस तरह तुम मेरे पास आई थी, जिस तरह तुमने मुझे प्यार किया, बिल्कुल वैसे ही कोई यहाँ जगह से बहाना बनाया।" हमज़ा ने फ़ौरन उठकर स्टडी रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उसका बहाना ख़त्म कर दिया। "अगर दादी अम्मा को पता चला तो जान ले लेंगी मेरी।" इसने घबरा कर कहा। "फ़िक्र मत करो, सब तुम्हें मासूम समझते हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।" इसका ये मतलब तो नहीं हमज़ा जी कि मैं इनके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाऊँ। वो थोड़ी-सी ख़फ़ा होकर बोली, "और जो तुम मेरी शराफ़त का फ़ायदा उठा रही हो, उसका क्या? चलो जल्दी उठो और मेरी गोद में आकर बैठो, वरना मैं इससे भी ज़्यादा सख्त तरीके से पेश आऊँगा। अभी तो सिर्फ़ गर्दन पर निशान है, बात नहीं मानी तो पूरे बदन पे निशान बना दूँगा।" ये सुनकर उसका दिल ज़ोर से धड़का। वो मुँह बनाते हुए उठी और हमज़ा की गोद में जा बैठी। इसका ये अंदाज़ हमज़ा का पागल कर रहा था। "बस इतना ही तो होता है?" इसने मासूमियत से पूछा। हमज़ा अपनी गर्दन पीछे झुकाकर ज़ोर से हँसने लगा। "आप पहले मुझे बताइए कि सब ठीक रहेगा ना? क्योंकि मैं रोज़ आपके कमरे में नहीं आ सकती। आप बहुत चालाक हैं। मुझे पता है आप रोज़ मुझे इसी तरह परेशान करेंगे। कल भी आपकी वज़ह से मैं रात भर सो नहीं सकी।" इसने शिकायत की। हमज़ा ने इसका हाथ पकड़ के ऐसे करीब खींचा। "मैं तुम्हारी वज़ह से पिछले कई सालों से सो नहीं पाया हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि वो बेचैनी कितनी जानलेवा होती है।" इसने नज़रें झुकाकर पूछा, "इसका इलाज क्या है?" "इसके लिए इलाज सिर्फ़ बाकायदा रुखसती और शादी है। अगर तुम इसके लिए राज़ी हो, तो जाओ, मैं तुम्हारी सारी बेचैनी दूर कर दूँगा।" पहले आप मुझे तसल्ली दिए, वो अभी-अभी अपनी ज़िद पर अड़ी थी। मुझे प्यार करो, फिर मैं बताता हूँ।" हमज़ा इसके लबों पर झुका और वो कभी इसके लबों को हल्के से काटती तो कभी इसकी गर्दन और गालों को चूमने लगी। हमज़ा ने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी। इसका चौड़ा सीना इसकी नज़रों के सामने था और मर्दों का मज़बूत सीना इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। वो जैसे खुद पर काबू खोने लगी। इसे बेसाख्ता हमज़ा के बालों में अपनी उँगलियाँ फँसाईं और नशे से भरी नज़रों से इसकी आँखों में देखा। वो धीरे से इसके और करीब आई। "तुम मुझे पागल कर रही हो मेहरीन।" हमज़ा ने इसकी कमर पर हाथ टिकाए और इसके चेहरे के और झुकते हुए कहा।
और आप मुझे पहले ही पागल कर चुके हैं, इसने जवाब दिया और अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। मैं नहीं जानती कि थी कि ये बेचैनी कैसे ख़त्म होगी, बस इतना जानती हूँ कि अब सिर्फ़ आप ही मुझे सुकून दे सकते हैं। एक पल के लिए हमज़ा को लगा कि इस नन्ही-सी जान पर बहुत बड़ा सितम कर दिया है। इसे लगा कि इसे इसकी मासूमियत नहीं छीननी चाहिए थी, मगर वो क्या करता? वो खुद पे नहीं तो उसे पाने के लिए मचल रहा था। वो इंतज़ार करना इसके बस की बात नहीं थी। आप खामोशी हैं, कुछ बोलिए ना, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ। इसके अलावा वो अपनी मोहब्बत लुटाने के बाद हमज़ा ने इसे बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। देखो, सिर्फ़ प्यार करने से कोई बीमार नहीं होता और नहीं बच्चा होता। तुम समझिए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हैरान होकर बोली, फिर आपने मुझे वो सब कहकर क्यों डराया था? मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। जब तक मेरी बीवी के बीच बाकायदा ताल्लुकात कायम नहीं होते, तब तक औलाद की नेमत नहीं मिलती। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो। अब रिश्ता कब कायम होता है? इसने बड़ी मासूमियत से मासूमियत भरी बेचैनी से पूछा। जब चाहो हो सकता है, लेकिन इसका एक असूल है, रुखसती बिना रुखसती के ये सब मुमकिन नहीं। अब मुझे आपसे अभी रुखसती करवानी है हमज़ा जी। वो झट से बोली। हमज़ा ने इसके हाथों को थामते हुए फ़िक्रमंद लहजे में कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, मेरी मोहब्बत की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं सब बर्दाश्त करूँगी, आप अभी मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। इसने पूरे एतमाद के साथ कहा। ठीक है, फिर सिर्फ़ एक शर्त है, अगर तुम अपने इम्तहानात अच्छे नंबरों से पास करोगी। ये तो आप मेरे साथ सरासर गलत कर रहे हैं, मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये कहते हुए वो सीढ़ियों से उतरने लगी, लेकिन हमज़ा ने फिर से इसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और आज जिस तरह तुमने मुझे भगाने की कोशिश की है, दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी चालाकियों को जान चुका हूँ। हाँ, हाँ, मैं समझ गई हूँ, और आप भी सुन लीजिए, मुझे भी पता चल गया है कि आप कितने शातिर हैं। जो आप रोज़ रात को मुझे बुलाकर तंग करने वाले थे ना, अब वो भी नहीं कर पाएँगे। महरीन ने मुँह बनाया। हमज़ा मुस्कुराया। मुझे तुम्हें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद दौड़ कर मेरे पास आओगी। ये आपकी गलतफ़हमी है, आपने मुझे हल्के में ले लिया है। मैं आपसे भी ज़्यादा सख्त हूँ। अपने बाल झटकती हुई वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। इसका मूड अचानक ख़राब हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि जैसा इसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। इधर हमज़ा ने भी फैसला कर लिया था कि वो दादा जान से जाकर इनकी रुखसती की बात करेगा, क्योंकि अब सब्र करना इसके लिए मुमकिन ना था। रात के 12:30 बजे महरीन की आंखें नींद से कोसों दूर थी। वो बेमकसद कमरे में टहलती रही और जब बोर होने लगी तो बाहर लॉन्च में आकर टीवी देखने लगी। अचानक इसे महसूस हुआ कोई इसके सर पे ऊपर खड़ा हो गया है। इसने जैसे अपनी गर्दन ऊपर उठाई, हमजा ने बड़ी लबों पर एक हल्का सा प्यार किया। महरीन बौखला गई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी। शुक्र था वहाँ कोई नहीं था। टेंशन मत लो, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है, हमजा ने शरारत से कहा। आप भी यहाँ से चले जाएँ, इसने मुँह फुलाकर कहा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी? हमारा रिश्ता ऐसा कोई थोड़ी है जो मैं आपसे नाराज़ हो के बैठ जाऊँ। इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। हमजा ने प्यार से इसकी छोटी-सी नाक खींची। आप मुझसे बात मत करें, मैं वाक़ई नाराज़ हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना अहम दिन, और इसके अल्फ़ाज़ अधूरे ही रह गए, क्योंकि अचानक चारों तरफ से हैप्पी बर्थडे की आवाज़ें गूंजने लगी। हर साल इसे रात 12 बजे इन सब का सबसे पसंदीदा शख्स यानी हमज़ा ही विश करता था, लेकिन आज रात 12 बजने के बाद वो इंतज़ार करती रही और हमज़ा ने इसे विश नहीं किया था। आधा घंटा बीत चुका था। इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि हमज़ा ने इसे इतने शानदार तरीके से इसकी सालगिरह का प्लान बनाया था। शायद हवेली की तारीख में ये पहली बार था जब किसी की सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाई जा रही थी। दादा जान, दादी, अम्मा, बाकी सब घरवाले भी वहाँ मौजूद थे। नफ़ीसा बेगम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और धीरे दुआएँ दी। महरीन इनकी पूरी दुनिया थी। सालों पहले एक हादसे में इनके शौहर का इंतकाल हुआ था। इनके जाने के बाद इन्होंने महरीन की खातिर दूसरी शादी नहीं की और अपनी पूरी ज़िंदगी इसके नाम कर दी। बरसों से वो सब एक ही हवेली में मुश्तरका ख़ानदान की तरह रह रहे थे। हमज़ा इसका ताया का बेटा था। वो अपनी मिजाज में काफ़ी सख्त, ज़िद्दी और तेज़ गुस्से वाला था, लेकिन महरीन के मामले में इसका गुस्सा जैसे हवा हो जाता था। इसने कभी भी इससे सख्ती से बात नहीं की थी। अगर वो कभी गलती से कोई कर भी देती गलती, तो हमज़ा बस इसे डाँट देता और फिर फ़ौरन इसे मनाने के लिए कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता, तो कभी गिफ्ट ले आता। जब भी वो दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जाता, तो वापसी में अपनी बीवी के लिए वहाँ की मशहूर चीज़ लाना कभी नहीं बोलता था। हमज़ा को बचपन से पता था कि लड़की इसके यहाँ निकाह में है, इसलिए इसने जज़्बात हमेशा ये महरीन के लिए गहरे थे। बस महरीन ही थी जो अब तक इस रिश्ते की गहराई को समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब से इसे इस बात का एहसास हुआ तो इसके दिल की हालत भी धीरे-धीरे बदलने लगी थी। उसी रात हमज़ा शाह ने सबके सामने अपनी बात रख दी। इसने साफ लहज़े में कहा, मैं अब रुखसत चाहता हूँ, मुझसे और इंतज़ार नहीं होगा। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूँ या ख़ानदान की रवायत को ख़राब कर दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात को संजीदगी से लें और इसे मेरे साथ रुखसत कर दें। दादाजान ने संजीदा होकर अपने पोते की तरफ देखा। इन्हें खुशी हुई कि हमज़ा ने कोई गलत रास्ता चुनने की बजाय डायरेक्ट इनसे बात की। वहीं नफ़ीसा बेगम थोड़ी परेशान थी। इनकी बेटियाँ भी काफ़ी छोटी और नादान थी। इसे पता नहीं था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। वो तो खुद अभी बच्ची थी, शादी तो जैसी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कैसे निभाएगी।
उन्होंने कुछ बोलना चाहा, हमजा ने इन्हें तसल्ली देते हुए ठुकरा दिया। आप फ़िक्र मत करें, मैं इसकी मेंटल लेवल को जानता हूँ और इसे वैसे ही ट्रीट करूँगा। काफ़ी देर से सोचने के बाद दादाजी ने अपना फैसला सुना दिया, तुम 2 साल वेट करो। इन 2 सालों के लिए उन्होंने हमजा को एक बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका भेज दिया। पहले तो उन्होंने कहा था ट्रिप सिर्फ 2 दिन का है, पर वहां जाकर हमजा को समझ आया कि वो 2 साल के लिए यहाँ फंस गया है। दादाजी की इस चालाकी पर उसे गुस्सा भी आया और हैरानी भी कि वो बेवकूफ़ कैसे बन गया। दूसरी तरफ मेहरीन भी हमजा से चिढ़ गई थी क्योंकि वो इसे बिना ही चला गया था। सालगिरह के बाद हमजा इसे दोबारा दिखा ही नहीं था। दादाजी ने इसे बिजनेस में बिजी रखा और फिर अचानक अमेरिका भेज दिया। बाद में जब हमजा ने मेहरीन को कॉल करने की कोशिश की तो इसने एक भी कॉल नहीं उठाई। जब नफीशा बेगम ने इसे बात करने के लिए बुलाया तो इसने जानबूझकर कॉल काट दिया और माँ से कह दिया कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हमजा इसकी चालाकी पर गुस्से से तिलमिला कर रह गया। एक तो लड़की इससे दूर थी और ऊपर से दादी ने इसे वहां फंसा दिया था। वो बेबस था। इसने वहीं बैठकर एक बड़ा फैसला लिया कि वापस आते ही वो सारी जायदाद अपने का नाम कराएगा और सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लेगा, ताकि फिर कभी कोई इसे इस तरह ट्रैप ना कर सके। नफीशा बेगम अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर सख्त तो हो गई थी क्योंकि इन्हें पता था कि हमदा 2 साल बाद लौटते ही रुखसती मांगेगा। वो ठीक इसी दिन वापस आ रहा था जिस दिन मेहरीन की सालगिरह थी। हमदा ने पहले ही दादा को कह दिया था कि आप शादी के सारे इंतजाम कर लेना क्योंकि मैं अपनी वाइफ की सालगिरह पर ही से रुखसत करवा कर ले जाऊंगा और तब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। दादी जी ने बात टालने के लिए कहा, रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक मेरी पोती ना चाहे। मैं इस पर प्रेशर नहीं डाल सकता। मेरे साथ भी तो आपने ज़बरदस्ती की थी। आपने मुझ पर ज़ुल्म किया जो मुझे इतनी दूर भेज दिया और अब वापसी के रास्ते भी बंद रख करके रखे हैं। हमज़ा गुस्से से भर गया। मुझे एक बार वापस आने दें, आप सबसे ही हिसाब बराबर करूँगा। इसे वहाँ गए हुए अभी 1 साल ही हुआ था। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और दिन बहुत लंबे और तपिश से भरे होने लगे थे। गर्मी की वजह से मेरिन दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस रात में जब थोड़ी ठंडक होती तो लॉन में टहलने चली जाती थी। एक रात वो हमेशा की तरह लॉन में वॉक कर रही थी कि अचानक किसी ने इसका हाथ पकड़ के साथ में खींच लिया। इसने डर के मारे हाँ, चलाने की कोशिश की लेकिन इसकी आवाज़ गले में ही दब के रह गई। तभी एक जानी पहचानी खुशबू इसके करीब आई और जब इसने हैरत से अपनी पलकें उठाई तो वो देखा कि हमजा सामने खड़ा था। फिर वो पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और जब चेहरे पे बढ़ी हुई हल्की सी दाढ़ी इसके लुक्स को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आप यहाँ? मेहरीन ने बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में पूछा। हमजा ने फौरन सवाल किया, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? मेहरीन ने पलट कर कहा, क्या आप ये सब कहने के लिए यहाँ आए हैं? दादा ने तो कहा था आप 2 साल के लिए बाहर गए हैं। हमजा ने झंझलाते हुए कहा, दादाजी की बात छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम मुझे लगातार इग्नोर क्यों कर रही हो? ना तुम फ़ोन उठाती हो, ऊपर से तुमने मुझे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से भी ब्लॉक कर रखा है। यहाँ तक कि जब तुम्हारी अम्मी बात कराने की कोशिश करती है तब भी तुम कॉल काट देती है। दिल गुस्से से भरा हुआ था लेकिन महरीन ने भी अपनी भड़ास निकाल दी। आपने भी तो मेरे साथ गलत किया था। पहले अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया और फिर अचानक गायब हो गए। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना बुरा लगा। इसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। हमजा को धचका लगा और वो सबने बोला, ये तुम क्या कह रही है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? मेरे ने रोते हुए कहा, आपने यही तो किया है। जब आपकी ज़रूरत थी तो मेरे आगे पीछे घूमते थे और फिर एकदम से मुझे छोड़ के चले गए। हमदा ने इसे समझाने की कोशिश की, तुम जानती हो कि मुझे दादी ने ज़बरदस्ती भेजा था और मैं जाना नहीं चाहता था। मैंने इनसे रुखसती की बात भी की थी लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती वो तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजेंगे। अब बताओ मैं क्या करता? तो फिर आप मेरे 18 साल होने का इंतज़ार करें, तब तक ना मेरे करीब आएँ और ना मुझे हाथ लगाएँ। अभी भी दूर होकर बात करें, वरना मैं चीख कर दादा को बुला दूँगी और फिर आपकी सज़ा डबल हो जाएगी। हमज़ा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैरी ने जवाब दिया, नहीं, मैं बस आपको सच बता रही हूँ। हमज़ा ने जाते-जाते कहा, ठीक है, मेरी आखिरी बात सुन लो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ और निकाह सिर्फ़ तुमसे ही निभाऊँगा। खुद को तैयार रखना क्योंकि इस बार तुम्हें मुझसे भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपना ख़्याल रखना प्यारी लड़की। तुम्हें देखकर दिल को ठंडक मिल गई। इसके गालों को हल्के से खींचकर वो खामोशी से चला गया। मैंने काफ़ी देर तक इसे जाते हुए देखती रही और फिर कमरे में जाकर खूब रोई। इसे एहसास हो गया था कि वो हम भी हमज़ा से मोहब्बत करने लगी है। इसने एक कैलेंडर देखा तो पता चला कि इसकी सालगिरह में अभी 3 दिन बाकी है और वो सालगिरह मनाए बिना ही चला गया था।
لیکن حمزہ کی سالگرہ بھولا نہیں تھا۔ اس نے مہرین کے لیے ڈھیر سارے گفٹ بھیجے اور ساتھ میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجی جس میں اس نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ مہرین کئی دنوں تک اس ویڈیو کو بار بار دیکھتی رہی، لیکن جب حمزہ کا فون آیا تو اس نے بڑے احسان جتاتے ہوئے انداز میں کہا، میں نے وہ ویڈیو بس ایک بار سرسری سے دیکھی تھی، اچھی تھی۔ حمزہ فیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے میری جان، جتنا تنگ کرنا ہے کر لو، کیونکہ اس کے بعد تنگ کرنے کی باری میری ہوگی۔ میں آپ کو موقع ہی نہیں دوں گی، مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی، جب تک میں 24 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک تو آپ بھول ہی جائیں۔ مطلب تم چاہتی ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ جب سے مہرین نے حمزہ کو ان بلاک کیا تھا، ہر 2 3 دن میں اس کی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، جیسے دونوں کافی انجوائے کرتے تھے۔ کب مہرین کی پسند عشق میں بدل گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ آخر 2 سال بعد حمزہ حویلی واپس آیا تو مہرین لگاتار اس کے چہرے کو ہی نہارتی رہی، جیسے اس کا دل ہی نہیں بھر رہا۔ حمزہ نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا پر اس نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں، لیکن جیسے ہی حمزہ نے رخصتی کی بات چھڑی، مہرین نے صاف منع کر دیا۔ یہ سن کر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسی شام وہ سیدھا اس کے کمرے میں پہنچا اور گرج کر بولا، تم نے رخصتی سے انکار کیوں کیا؟ کہ تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میری مرضی، مہرین نے بے پرواہی سے کہا، ہر بار تمہاری مرضی نہیں چلے گی ابھی، اور اسی وقت داجی کو جا کر ہاں کرو۔ اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو کیا آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ حمزہ نے بے بسی سے مہرین کے چہرے کو دیکھا اور اپنا غصہ دیوار پر مکہ مار کر نکالا، یہی تو مسئلہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہوئے تو کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد اسے خبر ملی کہ میڈم نے احسان جتاتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ تقریباً 1 مہینے بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی کے رسومات ہوئی اور رخصتی ہوئی۔ ان 2 سالوں میں مہرین بھی ہر وقت حمزہ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، یہاں تک کہ دادی سے بھی اس کے بارے میں باتیں کرتی تھی۔ اس کے دل میں حمزہ کی محبت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں۔ رخصتی کے پہلی رات مہرین خود کو بہت مضبوط بنا کر کمرے میں آئی تھی، لیکن حمزہ کے سامنے آتے ہی اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ پھر سے وہی ڈری سہمی مہرین بن گئی جو حمزہ کی شدت اور قوت کے خیال سے ہی کانپنے لگتی تھی۔ حمزہ نے جب اسے اس طرح سہما ہوا دیکھا تو من ہی من میں اس کی نظر اتاری۔ آج مہرین کے روپ میں ایک الگ ہی نکھار تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی اور قانونی طور پر بھی شادی کے قابل تھی۔ آج حمزہ جی کھول کر اس پر اپنا پیار لوٹا سکتا تھا اور اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ 2 سال بہت مشکل سے کاٹے تھے، پر اب صبر کا پھل اس کے سامنے تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ حمزہ نے اس کے سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں انکار کروں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، حمزہ نے انتہائی نرمی سے کہا۔ حمزہ کی یہی بات تو اسے سب سے اچھی لگتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر حمزہ کے گلے لگ گئی۔ حمزہ کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ اسے مہرین کو اپنی باہوں میں کس لیا، کھڑکی کے باہر سے چمکتا ہوا چاند بین کے خوبصورت ملاپ پر مسکرا رہا تھا۔ محبت میں پانی کی ضد سے کہیں زیادہ قیمتی اسے سنبھالنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ صبر جتنا لمبا اور گہرا ہوتا ہے، ملاپ کا احساس اتنا ہی مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے۔